Hello students, welcome back to my channel Physics Sphere. In this channel, I explain the lessons, physics lessons, and of course physics lessons. And my other channel is Unas Academy, in which I s- solve the MCQs, which are very useful for NEET, JEE, and CET aspirants. So please go through that channel also, and here the whole lesson is explained so that your concepts get cleared. Okay, so today the chapter we are going to see is current electricity. This is one of the best chapter. um, it is easy to understand actually as compared to other um, concepts, because in physics, see this, in physics what what the thing is, there are so many abstract things. Abstracts means you people must be knowing, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको हमें assume करना होता है. We have to just imagine those, that electrons, we don't see electrons, but everything we study in this thing is about electrons, about waves and motions and everything which we don't even see, but we study about them. So therefore sometimes, and many of the times, many children find it difficult to relate to physics, and they fear for the physics, they develop a fear for the physics. And that's why the name of my channel Physics Sphere. Understand the way of my teaching, and if you get in, if you are able to sink in whatever I teach you here, so you will fall in love with physics. Okay, so let us go to the topic directly. See, today's topic is electric current or current electricity. Okay, this is very good chapter and easy to understand. See, what do you mean by current electricity? See, there are two types of current. One is current electricity and static. This is current electricity. Yes. And the second one is static electricity. Actually, there are many types of currents. When we will go deep into this chapter, you will come to know there are so many types of currents, that is steady current, variable current, direct current, or instantaneous current, and so many. But for now, it is only current electricity and static electricity. Okay? So I'll bifurcate it this way. This is current electricity and this is static electricity. See here, actually what happens, the charges actually move through a conductor. Huh? So it is not needed, but still I will write so that you can stop the video and take the screenshot, so as you can make small notes also. So charges here actually move through conductor. See, we cannot see the charges here. Charges means, of course, electrons. Electrons only. Who are electrons? Electrons only create electricity. And how they create? Only by running. What is, देखो बच्चों, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है? सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. हमारे भागने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होंगी, बिकॉज वी आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स. बट थिंक एज ऑफ नाउ, थिंक एज इफ they are also some kind of individuals, and when they run, charges, see, charges means electrons, huh? When they actually move through a conductor, when they actually move through a conductor, it is current electricity. And when the charges remain stationary, that's why it is known as stationary. Means, see, railway station, bus station. Station means where we halt for some time.
तो मीन्स वी वेट फॉर सम टाइम, वी स्टैंड फॉर सम टाइम, वी आर नॉट मूविंग फॉर सम टाइम, तो उसको स्टेशन बोलते हैं. तो स्टेशनरी इसीलिए कहा गया है कि स्टेशनरी इन बॉडीज. नाउ सी द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज, मैंने ये टीवी स्क्रीन के पास कभी हम ऐसे हाथ कर देते हैं, ऑल ऑफ अस पे ऑलरेडी चार्जेस थे, एंड जब हम ऐसे करते हैं तो दे रिएक्ट विद योर बॉडी, और तुम्हारे जो गूज बम्स है वो आ जाते हैं. तो क्योंकि उस पर सम सिल्क क्लॉथ, एंड व्हेन यू पिक अप यू गेट टिकलिंग वॉइस, टक 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 टक, एंड हमारे हाथ पे भी कुछ होने लगता है. दैट इज़ बिकॉज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके ऊपर, मतलब जो है चार्जेस उस पर आ गए थे, एंड वी पिक देम अप, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद आवर बॉडी. तो वो है, मतलब हमको करंट नहीं लगेगा उनसे, वो इतने माइन्यूट होते हैं उस वक्त कि I hope you understood what is static electricity and current electricity. The more we go into it in the depth, giving third and fourth example, you'll get confused. So I don't want that. I want you to understand better understanding. Okay, and here the charge carriers are electrons. And here actually there are two types of charge: positive charges and negative charges. Okay, so you have to remember all these 2 points, point number 1 and 2, point number 1 and 2, what the topic is, and this was just an introduction. If you get clear through it, I am trying my best कि आप अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो से आपको ये समझ में आए, आप ज़ीरो भी हो तो आपको यहाँ से चैप्टर का पिकअप आपका हो जाए. तो दिस इज़ माई अटेम्प्ट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. Ohms. So what he said once, when the physical condition of the conductor, such as the length, see what he is saying, the length of the conductor, the temperature of the cross section and the material, when these all physical conditions remain the same, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. क्या बोला मैम ने? कुछ नहीं समझा. It is Ohm, OHM, Ohm's law. This is a very famous law, and you should, being a science student, you should be well versed with this name and also with his law. Okay, इन्होंने क्या कहा कि एक the physical condition of the conductor such as the length, एक हमने जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर ये 39 इंचेस है तो इसको हम बोलेंगे 1 मीटर. ऐसे ये हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना के रखा है ना. ये वेरेवर यू गो 1 मीटर क्लॉथ बोलेंगे तो दे विल काउंटेड एज 39 इंचेस. ओके, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वाला टर्म है. तो इसी तरह उन्होंने एक यूनिवर्सली बनाया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कब मूव होती है या कब ये होता है कि उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है. जैसे अगर हम और एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वाला एग्जांपल मैं देती हूँ कि व्हेन द वाटर इज़ बॉइलिंग इन एनी कंट्री एनीवेयर इन द यूनिवर्स, तो इसका मतलब है बॉयल होने का या फिर आइस बनने का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री, ये अबाव 100 डिग्री चाहिए और ये बिलो 0 डिग्री चाहिए, है ना. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो ऐसा वाला ही एग्जाम्पल ओम भाई ने बताया हमें कि व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये समझो कंडक्टर है, इसकी लेंथ, इसका टेम्परेचर समझो जो भी है, रूम टेम्परेचर पे मैंने एक लोखंड का सलिया रख दिया. ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो वाला, एंड द मटेरियल मीन्स ये आयरन का हो या जो भी हो, स्पेशली आयरन हो तो बेटर हो. तो when these physical conditions remain same, then the current flowing through the conductor
is directly proportional to the potential difference. Okay, which means the current we represent it with I and is directly proportional to potential difference. This is V is the, it represents potential difference, PD. Okay, or we can say V is directly proportional to Ri. Ri means this is resistance and this is current. Okay, so from here, from Ohm's law, this is Ohm's law, and from this we got this, these two important formulas. These are very basic. See children, ये मैं एकदम ज़ीरो, जिनको नहीं भी समझ मतलब कुछ पता नहीं होगा इसका, वो भी अगर ये चैप्टर देखेगा तो ही विल कम टू नो, एंड उसका साथ साथ में 11th और 12th दोनों पोर्शन हो ही जाएगा मीन्स, और इसके बाद वो होपफुली MCQs भी कर पाएंगे, एंड वॉट एवर गोज इन टू द MCQs मतलब ऑफकोर्स वो समझ में भी आने लगेगा. आई होप सो. Okay, so this is current for those who might not be knowing. I think only 1% of the children, whoever must be watching, out of if 10 are watching, only one student might not be knowing this is potential difference. And of course this is potential difference, this is resistance, this is current. Resistance also you must be knowing. Okay, so I'll rub this off and we'll move forward. Okay, so this was Ohm's law. Now what is resistance? Now here we wrote R. So R stood for resistance. Resistance means देखिए अभी हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें कोई रोक रहा है. My friend, I want to run but my friend is pushing me back. So this is the resistance, means is not letting me to run, or if you are running and there are hurdles in between, that means that is the resistance. आपको जब भी वो स्पीड ब्रेकर्स को ब्रेक करना होता है, आपकी स्पीड में स्लो, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है. सो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. वॉट एवर मेक्स योर स्पीड स्लो, that thing or that thing is known as resistance. Okay, so what is resistance? So resistance means to oppose the electric current, है ना. अब यहाँ पे क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. वो एक थोड़ा सा हमारा वार्म अप था. अब एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स व्हाट इज रेजिस्टेंस? सी रेजिस्टेंस मीन्स टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द V इज अप्लाइड टू द कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? जब हम दो बैटरीज लगाते हैं, दिस इज अ सर्किट, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो द रेजिस्टेंस मीन्स टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर, then the opposition to the flow of electric current is known as resistance. आई होप कि मेरे पहले एग्जाम्पल ने ही इतना क्लियर कर दिया होगा कि आप लोगों को इसके डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. बट येस, इफ़ यू आर ए 12th स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, you have to recite. Okay, you have to learn it by heart. Okay, and with actual words in inverted commas, whatever. And there is also one Joule's law. Okay, now we have seen Ohm's law, now there is Joule's law. Okay, इतना अगर आपको समझा है तो यहाँ तक का आई थिंक 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में इतना ही था. अगर आप लोग को ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, ये जो वर्ड्स है, ये सब समझ में आ गए, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें अगर समझ आ गई, दैट मीन्स यू हैव brushed up your 11th standard. Okay, now we will move on to current electricity chapter of 12th standard. Okay, now
सी नाउ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हमने ओम्स लॉ देखा, जूल्स लॉ देखा, ये 11th स्टैंडर्ड में था। अब हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ, ओके। The algebraic sum of the currents at any electric junction is equal to 0, ये उन्होंने कहा है। What? See, I'll write it off. दिस इज किरचॉफ्स लॉ। देखो बच्चों, कभी भी याद रखना, ये जितना भी जो भी लॉ होता है ना, लॉ का हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब द जब आता है तो एज ऑफ इफ यू नो इंग्लिश वेरी वेल, द मीन्स एग्जैक्टली, इट इज मीन्स अ मैन मीन्स एनी मैन आउट ऑफ 100, एनी, it could be any man, but when I say the man means specifically I'm pointing out at one specific man. So this is the means one specific thing. Algebraic sum, the exact algebraic sum of all the currents at any electric junction. See the word junction. So each and every word in any law is very important, because अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसी में पूरा खेल होता है एक्चुअली। तो जंक्शन इज इक्वल टू 0। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज एक्चुअल में। सी, अगर ये करंट्स है, एक करंट आ रहा है, दिस इज I1, फिर एक करंट है यहाँ से निकल रहा है, दिस इज द जंक्शन, दिस इज I2, अगेन वन इज कमिंग इन, दिस इज I3, अगेन third one is coming in, this is I4, and one is going out, this is I5. So actual में what this law is saying, I am trying to show you or explain you through this diagram. I3 plus I4, देखो रेड एरोज, मैंने सिर्फ रेड एरोज को लिया, ये जंक्शन में जा रहे हैं। समझो यहाँ पे फंक्शन है हमारा शादी का, तो ये सब शादी में आ रही है। इज इक्वल टू I2 प्लस I5, यानी जो किरचॉफ जी है, इन्होंने कहा है कि जितने करंट्स अंदर आ रहे हैं जंक्शन में और जितने बाहर जा रहे हैं वो इक्वल होते हैं। गॉट इट? बस फॉर नाउ तुमको इतना ही याद रखना है, वॉट एवर कम्स इन इज ऑलवेज इक्वल टू वॉट एवर गोज आउट। ओके, सिंपल वन लाइनर, ठीक है। अब इनके साइन कन्वेंशंस में बताती हूँ आपको। साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या है, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस? देखो, जो भी जंक्शन के पास आ रहा है, दिस इज द जंक्शन और ये आ रहा है, आई विल ड्रॉ इट विद रेड लाइन, बिकॉज मैंने यहाँ पे इनकमिंग जो है रेड से पॉइंट आउट किया है, एंड दिस इज़ द जंक्शन। जंक्शन के पास जो आ रहा है उसको हम पकड़ते हैं पॉजिटिव, है ना, और जो भी जंक्शन से बाहर जा रहा है उसको हम पकड़ते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो व्हाट दिस लॉ यानी किरचॉफ्स लॉ क्या बताता है? इन शॉर्ट आई विल से कि वो बोल रहा है कि ये और ये सब मिला के जब भी आप समेशन ऑफ करंट देखोगे ना, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
means the sum of the currents approaching the junction, the sum of currents approaching the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. Okay, so hope this concept is very clear. Kirchhoff's law, this is very basic. and साइन कन्वेंशंस भी, जो अंदर आ रहा है जंक्शन के बाद जो भी आ रहा है वो ऐड हो रहा है, ऑफकोर्स क्राउड में ऐड हो रहा है, और जो बाहर जा रहे हैं वो क्राउड से माइनस हो रहे हैं, तो दे आर नेगेटिव. इस तरह से इसको याद रखो. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. See, we are going step by step, very slowly we are going. So होप सो कि आपके लिए ये इजी हो रहा है. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे इनकमिंग में 10 + 5 इज इक्वल टू 2 + 1. ओके, तो 15 इज इक्वल टू 3. यानी when I bring this thing here, this is +15 and +5. Hope you know maths. -3 it becomes 12. This is 12 एम्पियर. एक्चुअल में हमारा जो आंसर है, सॉरी दिस वन 12 एम्पियर का आंसर है. इट इज़ जस्ट सिंपल प्लस एंड माइनस, जो अंदर आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उनके बीच का हमको ये करना है. तो हमें इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा 10 + 5 इज इक्वल टू 2 + 1 + 12. ये हमारा इक्वेशन होगा. यानी इधर भी 15 और इधर भी 15, 15 और 15. ठीक है, दिस वॉज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ विच वॉज सुपर इजी. होप यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विच स्टेट्स दैट, एंड दिस सेकेंड लॉ, सी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is known as current law or loop law. नहीं, current law, sorry, current law नहीं. Kirchhoff's second law is known as voltage law. इस तरह से भी याद रखोगे आप तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये सेकेंड लॉ की बात हो रही है. एंड व्हाट इट स्टेट्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस. हमने उसमें पूरे करंट्स की ही बात की थी फर्स्ट लॉ में, इजंट इट, जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, है ना. नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट द वोल्टेज. द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस प्लस द सम ऑफ द EMF टेकन अलॉन्ग a closed loop is equal to 0. Okay, अब क्या बोला कुछ नहीं मालूम. See, I'll explain it to you. This is the first part. We will go with sign conventions. Yes. Okay, तो sign conventions for EMF. What is EMF? EMF is, what is EMF? Do you know? It is electromotive force. That is energy. Okay? तो इसके लिए जो साइन कन्वेंशंस है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, when we are traveling from negative to terminal to positive terminal, यानी हम if this is negative and this is positive, तो हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव को ट्रैवल कर रहे हैं, एट द टाइम वी हैव टू टेक EMF इज एज पॉजिटिव. ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम दिमाग में भर लो. तुमको आई प्रॉमिस आप लोगों को कोई भी MCQ भारी नहीं पड़ेगा. सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखनी है, और यही चीज़ें इन पर अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये छोटी चीज़ें ही याद रखने के लिए या फिर MCQs में आपको आपका वक्त खाती है, आपका टाइम खाती है. तो इसके लिए ये इसको भर लो. EMF की जब भी बात आएंगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स इसका अपोजिट वैसा होगा. जब हम, मैं वैसे ही एग्जैक्टली लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि देखो ये
यहाँ से जहाँ जा रहा है ना ईएमएफ वहीं का हो जाता है. गॉट इट? ईएमएफ यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में आया तो नेगेटिव हो गया. बस आपको इतना याद रखना है. ओके. एंड या अब जो है साइन कन्वेंशन फॉर पीडीएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर किरचॉफ सेकेंड लॉ. इसमें क्या होता है, मैं वो भी यहीं पे बनाती हूँ ताकि मैंने बहुत जगह ले ली, लेकिन स्टिल आई विल राइट इट हियर. You can pause the video and you can take the screenshot, or you can make the notes also so that you can stick it to your desk, so it becomes easier if अगर नज़र के सामने रहा तो हफ्ता भर में आप लोग ये याद कर लोगे. So this is sign conventions for PDF. Sorry, PD. PD means potential difference, which sometimes V से भी denote होता है. Okay. So when we are going ये देखो, ये है हमारा करंट, दिस इज करंट. यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, ये सर्किट वाला हिस्सा है ए ऐसे. तो जब हम करंट जहाँ से भी फ्लो होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. सो व्हेन वी आर गोइंग, व्हेन वी आर moving along with the direction or along with the direction of current, जब हम करंट के साथ घूम रहे हैं उसके साथ ही उसके ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, in the direction of conventional current. You know, conventional, you should, whenever you are means learning any of the law or anything, तो आप लोगों को हर चीज़ की इवन छोटी छोटी मीनिंग भी पता होनी चाहिए. दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग. सो कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल, जैसे हम यूनिवर्सल वर्ड यूज़ करते हैं. यूनिवर्सल का मतलब ये है, हम कोई चीज़ को बोलते हैं इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इट मीन्स कि जो अर्थ है, अर्थ पर जितनी भी कंट्रीज़ है वो हर जगह एक्सेप्टेड है. यूनिवर्सली यानी यूनिवर्स में पूरा एक्सेप्टेड है. आप कहीं भी जाओ और जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है या लॉ है आप बताओ तो नोबडी विल गेट सरप्राइज, एंड बिफोर यू आप उन लोगों को भी पता रहेगा. तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है, कन्वेंशनल यानी एवरीबडी नोज के करंट का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं. ओके. तो ये कन्वेंशनल करंट है कि वो मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है. सो देन द पीडीएफ टेकन इज नेगेटिव. ये इसके साथ घूम रहा है ना, तो ऐसे समझेंगे हम कि पीडी जो है वो बुरा मान जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है. यहाँ पे वो जिधर जा रहा था उसका हो जा रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, नेगेटिव हो गया. ईएमएफ अच्छा है, पानी की तरह है, जहाँ जा रहा है उसके रंग में रंग जा रहा है. लेकिन ये जो है पीडी जो है, ये भाई थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं. तो करंट के साथ उधर जा रहा है तो करंट के साथ है तो वो उसके अपोजिट हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, इफ दिस इज़ द करंट मूविंग and I have explained, when we are going in the direction of current, that is if both the directions are same, then PD is taken as negative. Okay. So potential difference or the voltage is equal to the product of current and resistance. Now I'll explain what I said. See, in the pattern of V or PD, this is one and the same. Okay, is equal to I into R, यानी रेजिस्टेंस और करंट का मिलन है, मीन्स इनका प्रोडक्ट है पीडी. गॉट इट? यानी ओके. एंड दिस इज व्हाट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सेट. ओके. अल्टीमेटली हर कोई यही खोज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स की ही और ये सारी चीज़ों की. तो किरचॉफ सेकेंड लॉ भी कहीं ना कहीं ओम्स लॉ को दर्शाता है. ओके. यानी पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. सी वेरेवर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, तो इसको उसका जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. होप एवरीबडी नोज दिस थिंग, बट स्टिल फॉर मी बीइंग ए मॉम
आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बच्चों को हर एक छोटी मोटी चीज़ भी बता सकूँ. दो 99.9% who might be watching might be knowing all these things, but still for that 0.1% child I am explaining everything. Okay. Now moving further. Now when we उसी का जो दूसरा part था, since there was no space, तो when we move against the direction of the current, then the PD must be taken as positive. Of course, देखो पहला हम क्या था कि ये करंट जा रहा है, दिस इज I, और ये रेजिस्टेंस है ना. ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम था. जब हम इसके साथ मूव करते हैं तो हमारा वो पॉजिटिव आता है. इफ़ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ये हमारा नेगेटिव IR था. ओके. अब इसका अपोजिट क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, दिस वॉज फर्स्ट, नाउ दिस इज सेकेंड वन. That when we move against the direction of electric current, the same direction I draw, this is of course positive. जहाँ से भी करंट मूव होता है, it is always taken as positive. Children, time and again I am explaining, I am telling you कि जब जहाँ से भी करंट फ्लो होता है, the direction of flow of current is always taken as positive. और अगर हम इसके अपोजिट में आ रहे हैं तो हमारा ये जो है यहाँ पे नेगेटिव था, हम इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा इसके अपोजिट में बह रहे हैं, इसकी तरफ नहीं आ रहे. हम इसके अपोजिट में अगर बह रहे हैं तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव IR. ठीक है. अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ, इनको ध्यान में रखो, मैं यहीं पे छोटा बनाती हूँ सो दैट आप लोग इससे रिलेट करते हुए. और पहला वाला क्या था? पहला वाला जो करंट लॉ, ये तो हो गया हमारा एक्चुअल में B पार्ट है, एंड दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर PD, है ना. और हमारा A क्या था? A के डायग्राम्स याद है आप लोगों को? हमने क्या बताए थे? A के डायरेक्शन थे कि साइन कन्वेंशन फॉर A का, जब हम दिस इज करंट, इफ दिस इज करंट, इफ दिस इज बैटरी, पॉजिटिव की लाइन हमेशा बड़ी ली जाती है और ये नेगेटिव की हमेशा छोटी लेते हैं डायग्राम में. जो बैटरी हम यूज़ करते हैं हमारी एवर रेडी एंड एनी ड्यूरासेल और समथिंग, तो उसका पॉजिटिव साइड हम डायग्राम में कैसे बताएंगे? तो हम उसको जो है इसकी जो लाइन है उसको लंबा लेते हैं और इसको छोटा लेते हैं, नेगेटिव को. ओके. और अगर हम इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E हमारा पॉजिटिव होगा, और ये A का फर्स्ट था और A का सेकंड था कि अगर सेम चीज़ है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारा E नेगेटिव रहेगा. ओके. चलो, E स्टैंड्स फॉर बैटरी. ओके. तो ये मैंने दोनों बताए थे. अब बेस्ड ऑन दीज टू, ये है हमारे किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके. फर्स्ट लॉ तो हम लोगों ने बता दिए थे. ओके. तो बेस्ड ऑन दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन किरचॉफ्स सेकेंड लॉ एक्चुअल में. तो give me a minute, I'll draw the diagram. Okay. Yes, see childrens, this is the diagram. This diagram is of a circuit, and this we have drawn to explain Kirchhoff's second law. Okay. So देखो, the internal resistance is always denoted by small r. So I'll write here R1 and R2 are internal resistance. अब internal resistance क्यों बोला जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसको हमने क्रिएट नहीं किया है. रेजिस्टेंस वो अपने आप है, मटेरियल का डिफेक्ट है या मटेरियल की वजह से. मीन्स देखो, अगर ये मैंने एक तार लिया, मीन्स एक तार लिया है करंट फ्लो के लिए, पर वो तार है ना यहाँ से पतली है, यहाँ थोड़ी मोटी है या कुछ उसी में
थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा। तो वो जो है ना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है दौड़ने के लिए, या फिर पतला है तो वहाँ पे मतलब, तो करंट फ्लो में हमेशा जो है वो स्पीड ब्रेकर टाइप इट विल एक्ट। ओके, सो वो इंटरनल है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अस, दैट्स वाई दीज थिंग्स आर रिटन विथ स्मॉल आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी बोला जाएगा, ये तो अपने माइंड में फटक से आ जाना चाहिए कि ये इट इज़ material defect or anything related to material, it is not been created, it is self made. Okay, so ये self made वाले R1 और R2 है, ये दोनों मैंने explain कर दिए। अब ये है R, बड़ा R क्या है, ये हमने रेजिस्टेंस डाला है। आप लोगों लैब में जब जाते हो तो रेजिस्टेंस के वो होते हैं, यू पिकअप 5 ohms मीन्स वो जो भी रहते हैं, जो भी वैल्यूज़ के वो हम लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं। तो ये है, ये जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारा खुद का हमने डाला हुआ है। ओके, नाउ वी हैव हियर वी हैव 2 EMFs, ओके, E1 and E2 with internal resistance R1 and R2। तो ये बैटरी है और इसी के साथ ये रेजिस्टेंस क्रिएटेड है विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ओके, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMF दैट इज E1 and E2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसको ये पैरेलल बैटरी है, इसलिए नहीं कि ये दो लाइनें पैरेलल है, बट बिकॉज देर इज़ नो अदर कंपोनेंट इन बिटवीन, दैट्स वाई ये पैरेलल और सीरीज दो टाइप के मीन्स सर्किट्स होते हैं। विल कम मीन्स इनकाउंटर, यू माइट बी नोइंग और विल सी इट फर्दर। ओके, सो लेट I1 बी द करंट ड्यू टू फर्स्ट EMF। ये जो है ये I1 इसकी वजह से आ रहा है। देखो ये बड़ी लाइन है ना, तो अब मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग को समझना है कि ये पॉजिटिव मतलब हमारा आर्म है और ये नेगेटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो भी पॉजिटिव है इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि यहाँ से ही करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ घुस रहा है ना। ये E2 बैटरी है, यहाँ से भी करंट स्टार्ट हो रहा है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफकोर्स ऑलवेज E1 एंड E2, जो भी बैटरी है वहीं से करंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, हाँ, यहाँ से भी करंट स्टार्ट हो रहा है और देखो ये यहाँ आया, यहाँ पे आ गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है करंट आया एंड प्लस करंट 2, यहाँ दोनों पे है। अब दोनों यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे तो इनको इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो भी है, अगर यहाँ पे इनकी क्षमता 100 है तो 100 से ये ऐसे ज़ख्मी होके यहाँ पे समझो 80 हो गया, 80 से इधर डिवाइड होगा 40 और 40। दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर 40 यहाँ पे आया, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से थोड़ा और कम हो गया और फिर यहाँ पे आएगा। गॉट इट? दिस इज़ द वे इट गोज, इधर भी 40 आएगा और इधर। तो हाउ टू कैलकुलेट इट वी आर गोइंग टू सी। ओके, अब मैंने बताया था EMF का क्या है, दिस इज PD मीन्स V एंड दिस इज EMF। EMF का क्या मैंने बोला था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ये EMF बहुत ईजी है, ये बहुत सीधा है, जहाँ जाता है वहीं इसका उसी रंग में रंग जाता है। सो दीज टू करंट्स आर फ्लोइंग टुगेदर through their internal resistance. Okay, therefore the total current flowing through this external resistance will be I1 plus I2. Okay, now Kirchhoff's second law, also known as loop law, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। यानी ये इट शुड किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ का मतलब ये होता है कि इट शुड फॉर्म लूप। ये हमने पहला वाला देखा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में था, है ना। ये लूप लॉ मतलब ये स्टार्ट भी होना चाहिए और ये एंड भी होना चाहिए, कहीं भी खुला नहीं रहना चाहिए। इट शुड फॉर्म अ लूप, और ये हमारा लूप बन रहा है। ये देखो, थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड गोइंग अगेन बैक टू इट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है एंड अगेन इट इज़ कमिंग बैक हियर। होप यू कैन सी इट। ओके, इसीलिए इसको लूप लॉ भी कहा जाता है। ओके, तो सो नंबर ऑफ क्लोज लूप्स हियर आर,
देखो इसमें नंबर ऑफ क्लोज लूप एंड इट ऑलवेज गोज ऐसे ऐसे ऐसे. यू कैनॉट से ABC and DEF. No, it is wrong. You should go in series only. Okay, so here number of closed loops are पहला ABCDEF and again A. You have to consider जहाँ से शुरू किए वहीं पे ख़त्म होना ही चाहिए. This is the prime rule of this law. See, the first letter should again come last also. ये एक लूप हो गया ये बड़ा वाला. अब हमारा सेकेंड लूप देखो जो मैंने बनाया है बीच में. इट इज़ ABE. ABEF and again A. Third one BCDE and B. C. Fourth one AC. Sorry, B should not come in. ACDF and A. Okay, it was that way. And BCDE again B and again AC, this one ABEF and A. Yes, hope you are not confused. I am not confused you. See, first loop सब में बड़ा वाला हम लेंगे AC. मैंने गलती की थी कि मैंने B को भी लिया था. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक इन बिटवीन. सो ACDF ऐसे गए हम, ऐसे गए, ऐसे गए एंड अगेन टच ही. ओके, इसमें यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा, तो हम यहाँ से लेंगे ABEF एंड अगेन A. यहाँ पे चालू करेंगे. ये तो हमारे यहाँ पे 3 क्लोज लूप्स है. ओके, now we are going to apply Kirchhoff's second law to all these 3 loops. Okay, and this is very important. If you remember all the sign conventions, you will do it very easily. Okay, Kirchhoff's second law to all these loops. I'll rub this thing so that I get space to explain this thing to you. And wait. ठीक है. So applying Kirchhoff's second law for first loop. For first loop ACDF. Biggest loop ACDFA. हाँ, तो ये how it will go. देखो तुम्हारा A से C पे जा रहे हो आप, तो आप करंट के अगेंस्ट निकले हो, तो आपका E रहेगा माइनस. पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो. ओके, फिर आएगा हमारा प्लस I2 आया. ये पॉजिटिव है, यहाँ से हम निकले और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम घूम के नेगेटिव की तरफ जाने वाले, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे. फिर हम किससे मिले? हम मिले करंट I2 से. दिस इज़ I2, दिस इज़ I2, दिस इज़ I1. इस बैटरी से निकलता हुआ करंट I1 है, इस बैटरी से निकलता हुआ करंट I2 है. ओके, फिर हम मिले I2 से और I2 के साथ था R2 भी. इसको हम अलग से प्लस माइनस नहीं लिखते हैं. दिस इज़ 1 यूनिट इटसेल्फ. ओके, तो I2 से मिले यहाँ पे और ये छोटा वाला R2 भी मिल गया हमें साथ में. फिर हम आगे बढ़े. फिर हमें क्या मिला? I1 और R1 मिला. ओके, I1 R1. फिर हमें वापस से क्या मिल गया? E1 मिल गया. E1 क्या मतलब? अब हम यहाँ पे जो है ये करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हमारा जो है
प्लस ई है और इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। आप लोगों को नहीं समझा है तो मैं फिर से समझा दूंगी। अभी हमारे और भी दो बाकी है। आई हैव एक्सप्लेन दिस द इक्वेशन फॉर दिस थिंग। नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड वन। फॉर लूप, दिस वाज फॉर लूप ए सी डी एफ ए। ओके, अब हम सेकेंड वन कर रहे हैं फॉर लूप ए बी ई एफ ए। ओके, ये ऊपर वाला, ऊपर का छोटा वाला। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ से जब हम निकले हैं तो आएगा -i1 + i2 r -i1 r1 + e1 is equal to 0. Now see, I'll explain. Moving from AB, जब हम AB से आ रहे हैं तो i1 + r1 i1 + i2 मिल रहा है हमको और बड़ा वाला r भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये i1 है, i1 इधर तक आया, यहाँ पे मुझे i2 मिला। दिस इज i2, isn't it? मतलब एक्चुअल में ये दोनों मिलकर है, पर i2 भी तो है इसमें। तो i1 + r1 i1 + i2 एंड r, कैपिटल R, ये मिले हमें। बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। ओके, एंड देन फिर हम जो है ऊपर जा रहे हैं। वी आर गोइंग in opposite direction, so therefore we'll take it as -i1 r1 and we are going to पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, so we will take पॉजिटिव e1। ओके, e1 के पास। नाउ फॉर लूप 3, थर्ड लूप है BC DED में। इट शुड बी फ्रॉम इट शुड स्टार्ट फ्रॉम C बिकॉज हमारी जो बैटरी है वो C से स्टार्ट हो रही है। तो एक्चुअल में इट शुड स्टार्ट फ्रॉम C, दैट वे। सो C D E B C। ओके, तो इसके लिए देखो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं छोटे छोटे इसको बाइफरकेट करके एक एक छोटा डायग्राम बनाने के लिए, बट दो के लिए नहीं बनाई। आई विल मेक फॉर दिस थर्ड वन, सो दैट अगर आप लोगों को ऊपर का ना समझा हो तो यहाँ पे समझ में आए। ओके, दिस इज B, दिस इज C, यहाँ पे मेरी बैटरी है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज माई E2। ओके, यहाँ पे मेरा करंट है I2, यहाँ पे भी I2 जा रहा है, यहाँ पे भी I2 जा रहा है, पर यहाँ पे बीच में बड़ा स्पीड ब्रेकर है और ये ऐसे और ये ऐसे। अब हम सिर्फ इसी को कंसिडर कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम बीच में छोटे से इंटरनल रेजिस्टेंस R2 को भूल गए। ओके, दिस इज R, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज E। होप सो एवरीथिंग इज कवर्ड। अब मैं इसके थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका, अगर आप लोगों को ये दो पॉइंट्स ना समझे हो तो थ्रू दिस यू विल गेट अ गुड आइडिया। ओके, माई करंट इज़ फ्लोइंग, यहाँ से चालू हुआ है, ये करंट है, इस तरह से जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, सो starting from C to B, there is no component at all. Okay, so we are moving from positive terminal to negative terminal. ये पॉजिटिव है और हम नेगेटिव की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए हम लेंगे -i1 + i2 और i2 + i1। ओके, एंड द बिग R1। ठीक है, समझा? यहाँ से हम जा रहे हैं, दिस इज I2 और I1 भी है यहाँ पे। नॉट टू फॉरगेट, ये जो ऊपर की लूप से भी एक करंट आ रहा है, तो I1 भी है यहाँ पे और I2 भी है। तो इसलिए I1 और I2, B और C के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से चुपचाप निकले, यहाँ पे आए, पर यहाँ पे आए तो हमें मिल गया I1 + i2।
पर हम उसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव की तरफ। तो हमने नेगेटिव लिया, I1+R2 मिल गया। फिर क्या मिला, R मिल गया हमको, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया। फिर हम, क्योंकि अभी नेगेटिव टर्मिनल ये E है, इस सॉरी ये तो E है नॉर्मली, अब हम यहाँ पे नेगेटिव की तरफ ही आ रहे हैं ना, तो देयरफॉर अगेन वी विल टेक इट नेगेटिव एज I2R2. This is current I2 and this is small resistance R2. तो इनको कभी भी हम एक यूनिट ही मान के चलते हैं। प्लस नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव, अब हम ई की बात करेंगे ना, तो ई क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, तो पॉजिटिव जिस जगह जाता है वो वहाँ का हो जाता है, उस रंग में रंग जाता है, इज इक्वल टू 0। होप सो चिल्ड्रंस, आप अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल separately explain you how this works, because if you don't know this thing, so you will never come to know, you will never be able to solve the MCQs based on such loops. Okay, so hope so you people got to hear whatever I taught you. और इसके बाद हम जाएंगे एक अच्छा वाला एग्जांपल विद, यहाँ पे हमने वोल्ट जो करंट का जो है अमाउंट नहीं लिया था, मतलब हमने फिगर्स में बात नहीं की, तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली इंशाल्लाह वी विल स्पीक इनटू फिगर्स आल्सो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड for the whole chapter. I'll explain the whole chapter. I'll upload videos daily or as soon as possible, and I'll end this chapter from head to toe. So I have brushed up with your 11th standard also, and wherever necessary I'll try to explain each and every small जो terminology of the physics also, so that it becomes easier and your fear converts into love for physics. Hope so. So please keep commenting what you want to see next about after this chapter, what you want to see the next. So please subscribe, like, share and comment, because this is the only way we can get in touch with each other, so that I will come to know what my drawbacks are, what is my good strategy, or are you able to understand the way of my teaching, are you liking or not, or should I modify it to somewhere, or are my videos means only the thing is you should get whatever I'm teaching, you should get it into your mind. That's it, that is my thing. Okay, so dear children, please keep commenting. Okay, bye, see you into next video.